Hi everyone, welcome to the channel. So this is your video for chapter 5, sensory, attentional and perceptual processes. So these are three processes which are a part of our cognitive system and we'll study all three of them in detail. So let's start with our first topic, the sensory system. So our knowledge of the world around us depends on three basic processes, which are sensation, attention and perception. Now these processes are highly interrelated. Hence, they are often considered as different elements of the same process called cognition. तो ये जो हमारा cognitive system होता है ना, जिससे हम mental processes perform करते हैं, ये तीनों processes, sensation, attention, perception, तीनों processes उसी system के अलग अलग elements होते हैं and ये तीनों बहुत interrelated होते हैं. So now we start with the next topic, which is the sensory system. So as human beings, we are bestowed with a set of 7 sense organs. So these sense organs are also known as sensory receptors. अब receptors reception word से बना है और reception का मतलब होता है कोई चीज receive करना. तो reception मतलब information receive करना. हमारी sense organs अपनी environment से information receive करते हैं, इसलिए इन्हें sensory receptors या information gathering systems भी बोला गया है because they receive or gather information from a variety of sources. So 5 of these sense organs collect information from the external world, which are the eyes, ears, nose, tongue and skin. ये external world से information collect करते हैं. Besides these 5 external sense organs, we have also got 2 deep senses. So they are called kinesthetic and vestibular system. So these are our another 2 sense organs. They provide us with important information about our body position and movement of body parts related to each other. So basically these 2 sense organs work at an internal level. So ये हमारे 7 sense organs हो गए. Now what are sense modalities? Our sense organs provide us with first-hand information about our external or internal world. So the initial experience of a stimulus or an object registered by a particular sense organ is a sensation. हम कोई stimulus को जब पहली बार experience करते हैं, पहली बार उस stimulus से aware होते हैं, तो हमारे सेंस ऑर्गन्स उस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उस पूरे प्रोसीजर को हम बोलते हैं सेंसेशन. सो द वे द सेंस ऑर्गन्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन, द वे दे एक्सपीरियंस अ पर्टिकुलर स्टिमुलस इज बेसिकली कॉल्ड सेंसेशन. सो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटेक्ट एंड एनकोड अ वैरायटी ऑफ फिजिकल स्टिमुलाई. सो नेक्स्ट, each sense organ is highly specialized for dealing with a particular kind of information. So we have extremely specialized sense organs and each one of them is known as a sense modality because they are specialized in their particular field. So they are known as sense modality. Now, what are the functional limitations of sense organs? Now, it is important to note that our sense organs function within certain limitations. अब जैसे as human beings, our eyes cannot see things which are very dim or bright. Bright चीजें आती हैं तो हम eyes close कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो एक लिमिटेशन है, हमारी आईज इतनी ब्राइट ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकती. सिमिलरली आवर ईयर्स कैन नॉट हियर वेरी फेंट और वेरी लाउड साउंड. सो आईज, ईयर्स, ऐसे हर सेंस ऑर्गन की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, वो उस फंक्शनल लिमिटेशंस के दायरे के अंदर ही काम करते हैं. इन ऑर्डर टू बी नोटिस्ड, अ स्टिमुलस हैज टू कैरी अ मिनिमम वैल्यू और वेट. अब नोटिस करने के लिए किसी भी स्टिमुलस को उसके अंदर एक मिनिमम वैल्यू या वेट होना चाहिए. So the minimum value of a stimulus required to activate a given sensory system is called absolute threshold or absolute Lyman. अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम फ्रेश लाइन बना रहे हैं. So if you add granule of sugar to a glass of water, you will not experience any sweetness in that water. Now you've thought of making fresh lime and आपने एक पानी के ग्लास में शुगर डाले, लेकिन एक बार आपने टेस्ट किया तो आपको पता ही नहीं चला कि इसमें मैंने शुगर डाला था नहीं डाला था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा, ये मीठा नहीं लग रहा. नाउ एडिशन ऑफ अ सेकंड ग्रैन्यूल टू वाटर may also not make it taste sweet. But if you go on adding sugar granules one after another, there will come a point when you will say that the water is now sweet. आप शुगर डालते गए and 5 या 3 या 4 स्पून्स के बाद आपको लगा कि हाँ इसमें चीनी है, that this drink is now sweet. ये सिर्फ पानी नहीं है. So the minimum number of sugar granules required to say that the water is sweet will be the AL of sweetness. 4 स्पून्स पे मुझे सेटिस्फैक्शन मिली कि हाँ ये अब पानी नहीं रहा, ये थोड़ा स्वीट हो चुका है, तो वो मेरे लिए मेरा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड होगा. 4 चम्मच के बाद मैंने उस मीठेपन को नोटिस किया, इस मीठेपन को अपनी
सेंस ऑर्गन से एक्टिवेट किया, एक्सपीरियंस किया, तो वो मेरे लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बन गया। 4 चम्मच चीनी डालने से मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल गई, वो मेरा थ्रेशोल्ड था, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। नाउ it may be noted at this point that the AL is not a fixed point. Instead, it varies considerably across individuals and situations depending on the people's organic conditions and their motivational state. Now, you must have seen people कि जब वो लोग कोई भी ड्रिंक लेते हैं उसमें उन्हें एक लेवल तक शुगर चाहिए ही होती है। कुछ लोग कम शुगर लेते हैं, कुछ लोग ज़्यादा। तो ये एक डिफरेंस हो जाता है। किसी के लिए उसका एब्सोल्यूट लाइन में सिर्फ 1 स्पून शुगर होगा, लेकिन किसी के लिए 4 या 5 भी हो सकता है। तो हर इंडिविजुअल के लिए ये चीज़ वेरी करती है, उनका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है उनकी ऑर्गेनिक कंडीशंस पे या उनके मोटिवेशनल स्टेट्स पे। नाउ वी हैव डिफरेंस लाइनमेन। व्हाट इज डिफरेंस लाइनमेन? The smallest difference in the value of two stimuli that is necessary to notice them as different is called difference threshold or difference Lyman. Now, difference threshold में हम अब उसी example को continue करेंगे. To understand it, we may continue with our sugar water experiment. As we have seen, the plain water is experienced as sweet after the addition of certain number of sugar granules. 4 चम्मच शुगर डाली मैंने, मुझे पता चल गया कि हाँ अब ये वाटर स्वीट है, तो मेरे लिए वो मेरा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड बन गया। The next question is, how many sugar granules will be needed in the water in order to experience its sweetness as different from the previous sweetness? अब मैं और कितने स्पून शुगर डालूं जिससे मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि हाँ जितना पहले ये पानी स्वीट था उससे अब ज़्यादा हो गया है। Go on adding sugar granule one after another, tasting the water each time. Now, after addition of a few granules, you will notice at a point that the water is now sweeter than the previous one. अब फिर शुगर डालते गए 4 स्पून्स के बाद भी, और फिर एक पॉइंट आया जब आपको पता चला कि हाँ अब ये पानी पहले से ज़्यादा स्वीट हो गया। So the number of sugar granules added to the water to generate an experience of sweetness that is different from the previous sweetness on 50% of the occasion will be called the difference Lyman of sweetness. So एक basic difference, 4 spoons absolute threshold, मैंने और उस 4 spoons डाले, 8 कर दिए उस total number of spoons को, तो वो जो 4 spoons का difference आया 8 minus 4, उसमें मुझे पता चला कि हाँ ये पानी अब पहले से ज़्यादा sweet हो गया है, तो वो 4 spoons ने difference create कर दिया, so that becomes my difference threshold. तो ये था हमारे difference threshold और absolute threshold के दो टॉपिक। नेक्स्ट, attentional process. Now what is attention? अटेंशन मतलब किसी चीज़ पे ध्यान देना, किसी चीज़ को बहुत फोकस से ऑब्जर्व करना। सो द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर्स इज जनरली रेफर्ड टू एज अटेंशन। जब आप किसी सब्जेक्ट की क्लास में होते हो तो आपका पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में होती है, उस चैप्टर को समझने में होती है। आप ये ध्यान नहीं देते कि आसपास 2 लोग क्या बात कर रहे हैं, क्लास के बाहर कोई है नहीं है। Your entire attention is focused on those concepts. तो ये होती है attention in which we select certain stimuli which become our center of focus from a group of others. So this process is known as attention. Now attention has certain properties. Number 1, alertness. सबसे पहले alertness. Alertness क्या होता है? Alertness refers to an individual's readiness to deal with stimuli that appear before her or him. Alertness मतलब जब हम एक रेस में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो यू माइट हैव सीन पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्टार्टिंग लाइन इन एन अलर्ट स्टेट वेटिंग फॉर द विसल टू ब्लो इन ऑर्डर टू रन। उन पार्टिसिपेंट्स का सिर्फ इतना फोकस होता है कि कब विसल बजेगी और मैं रन कर पाऊंगी। तो ये होती है अलर्टनेस, जिसपे हम बहुत ही रेडिली एक पोजिशन में होते हैं कि हाँ जब ये फिनोमेना अकर होगा तब मुझे ये स्टेप लेना है। एक रेडीनेस होती है, मेंटल रेडीनेस किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब concentration refers to focusing of awareness on certain specific objects while excluding others for the moment. For example, in the classroom, a student concentrates on the teacher's lecture and ignores all sorts of noises coming from different corners of the school. तो ये उसका concentration का पार्ट बन जाता है, जहाँ पे वो सिर्फ टीचर की बात पे फोकस कर रहा है, ध्यान दे रहा है। अब सर्च क्या होती है? In search, an observer looks for some specified subset of objects among a set of objects. Now, if you are going to the school to fetch your younger sister and brother from the school, so वहाँ पे स्कूल में तो सब boys और girls ने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी होती है, so you just have to look for your brother or sister from the innumerable boys and girls. तो ये होता है सर्च, जिसमें हम एक स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं।
among innumerable subsets. So these were the properties of attention. Now attention has a focus as well as a fringe. अब इसको हम ऐसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू. Now there is a vase in front of me and उसके पीछे एक wall है पिंक कलर की. मैं उस वास को ही देख रही हूँ because that is a very beautiful vase. Pink color, nice designing and very beautiful flowers are kept in that vase. So that vase is my focus of attention. और fringe क्या हो गया? उसके पीछे की wall. क्योंकि मैंने उस wall पे ध्यान ही नहीं दिया. मेरा पूरा focus सिर्फ उस vase पे है. So that wall becomes the fringe for me. Because I'm not focusing on that wall, I'm not paying attention to that wall. So when the field of awareness is centered on a particular object or event, it is called focus or the focal point of attention. My entire attention is centered on that vase. So that becomes my focal point of attention. On the contrary, when the objects or events are away from the center of awareness or one is vaguely aware of them, they are said to be at the fringe of attention. मेरे को पता है वो वॉल एग्जिस्ट कर रही है, मेरे को जानकारी है उस बारे में थोड़ी सी, बट मैं उस वॉल पे इतना ध्यान नहीं दे रही जितना मैं उस वास पे दे रही हूँ. वो वॉल बस एक बैकग्राउंड में एग्जिस्ट कर रही है. सो दैट बिकम्स माई फ्रिंज ऑफ अटेंशन. सो दैट इज व्हाट अटेंशन हैज अ फोकस एज वेल एज अ फ्रिंज. नेक्स्ट, अटेंशन के अब 3 टाइप्स होते हैं: सिलेक्टिव अटेंशन, सस्टेन्ड अटेंशन एंड डिवाइडेड अटेंशन. सो फर्स्ट वी हैव सिलेक्टिव अटेंशन. Selective attention is concerned mainly with the selection of a limited number of stimuli or objects from a large number of stimuli. So basically हम एक ग्रुप में से ना कुछ number of stimuli select करते हैं जिस पे हमें ध्यान देना होता है, attention पे करना होता है. So this is called selective attention. So what are the factors affecting selective attention? External factors related to the features of the stimuli. Stimuli के features क्या हैं जिस वजह से मैं उस पे ध्यान दूंगी? So the size, the intensity and the motion of stimuli appear to be important determinants of attention. Large objects, bright objects and moving stimuli easily catch our attention. तो ये थोड़े external factors होते हैं which relate to the features of the stimuli. Internal factors, they lie within the individual. So these are categorized into motivational factors and cognitive factors. Motivational factors relate to our biological or social needs. जैसे when we are hungry, we notice even a faint smell of food. A student taking an examination is likely to focus on a teacher's instructions more than the other students. तो motivational needs होती हैं. जब हमें भूख लगी होती है तो हम दूर से भी उस खाने को स्मेल कर पाते हैं. Now why is it so? Why? Because our attention is focused on food. We want to have that food. That is why हमारा सारा attention उस food की तरफ, उस stimulus की तरफ एक selective way में proceed करता है. तो ये मेरे मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं. कॉग्निटिव फैक्टर्स जैसे इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड द प्रिपरेटरी सेट. जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में स्कूल में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, हम उसी को ज़्यादा अच्छे से सिलेक्ट करके अटेंड करते हैं, अटेंशन पे करते हैं. ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स विच अपीयर इंटरेस्टिंग आर रेडिली अटेंडेड बाय इंडिविजुअल. Similarly, we pay quick attention to certain objects or events to which we are favorably disposed. अब preparatory set क्या होता है? Preparatory set generates a mental state to act in a certain way and readiness on the individual to respond to one kind of stimuli and not to others. Now, I am interested in studying psychology, so I'll create a complete preparatory set for myself. कि हाँ, पहले मैं कुछ chapter read करूँगी, फिर उसके बाद notes से read करूँगी, फिर question answers practice करूँगी, MCQs practice करूँगी. मैं mentally एक set बनाती हूँ, preparation करती हूँ उस चीज को अच्छे से पढ़ने की. Why? Because I'm interested in that subject. That is why I pay more attention to that subject. So ये होता है preparatory set in which I am in a ready mental state to attend to a particular stimuli. Now we have some theories of selective attention. So filter theory. Filter theory, it was developed by Broadbent. So according to this theory, many stimuli simultaneously enter our receptors, creating a kind of bottleneck situation. अब जो हमारा sensory system होता है ना, उसमें कई सारे stimulus एक साथ आते हैं जिसकी वजह से वो लोग फंस जाते हैं. एक bottleneck kind of situation create हो जाता है जिसमें वो सारे stimulus आके अटक जाते हैं, फंस जाते हैं. Now when they move through the short-term memory system, they enter the selective filter which allows only one stimulus to pass through for higher levels of processing. तो फिल्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक बॉटल नेक काइंड ऑफ सिचुएशन बन जाती है तो सिर्फ एक ही स्टिमुलस शॉर्ट टर्म मेमोरी से हायर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग तक पास कर पाता है, बाकी सारे स्टिमुलस ब्लॉक हो जाते हैं.
तो ये फिल्टर थ्योरी का पर्सपेक्टिव था. नेक्स्ट वी हैव द फिल्टर अटेंशुएशन थ्योरी गिवन बाय ट्राइजमैन. So it was given by modifying Broadbent's theory. So this theory proposes that the stimuli not getting access to the selective filter at a given moment of time are not completely blocked. जो stimuli sensory system से लेके short term memory से लेके higher levels of processing तक नहीं जा पाए, वो completely block नहीं हो जाते, बस उनकी strength weak हो जाती है. ये filter उनकी strength को weak कर देता है. However, some stimuli manage to escape through the selective filter to reach higher levels of processing. फिर भी कुछ stimuli पास कर जाते हैं उस फिल्टर के ताकि वो higher levels of processing तक जा पाए. So it is indicated that personally relevant stimuli can be noticed even at a very low level of sound. आप किसी बहुत ही ऐसी जगह पे हो जहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है, लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, तब भी कोई आपका नाम बुलाएगा ना, आपको वो सुनाई देगा, क्योंकि वो आपके लिए पर्सनली रेलेवेंट स्टिमुलाई है जिस पे आप ध्यान दोगे. चाहे जितनी ही लाउड नॉइज हो, जितने ही स्टिमुलस आपके आसपास हो, तब भी आप उस नाम को सुनोगे और रिस्पॉन्ड करोगे. तो ये होती है फिल्टर अटेंशुएशन थ्योरी गिवन बाय ट्राइजमैन. नेक्स्ट वी हैव मल्टीमोड थ्योरी व्हिच इज अ वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी गिवन बाय जॉनसन एंड हाइन. So this theory believes that attention is a very flexible system that allows selection of a stimulus over others at 3 stages. तो ये थ्योरी बेसिकली कहती थी कि अटेंशन एक बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारे स्टिमुलस में से एक स्टिमुलस पे ध्यान देते हैं और 3 स्टेजेस में उस स्टिमुलस को प्रोसेस करते हैं अपने दिमाग में. सबसे पहला स्टेज सेंसरी रिप्रेजेंटेशन. विजुअल इमेजेस ऑफ स्टिमुलाई आर कंस्ट्रक्टेड. आपने कुछ सुना, आपने उस ऑब्जेक्ट की विजुअल इमेज बना ली अपने दिमाग में, सिंबॉलिकली उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया. एट स्टेज 2 द सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसका मतलब क्या है. सिमेंटिक मतलब निकालना, किसी चीज का मीनिंग निकालना. तो आपने उस ऑब्जेक्ट का मीनिंग निकाला, उस पर थोड़ा और ध्यान दिया, उसका नेम जाना, उसके फीचर्स समझे, ये होती है सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन. स्टेज 3 the sensory and semantic representation enter the consciousness. आपने उस स्टिमुलस की विजुअल इमेज भी बना ली, उसका मीनिंग भी समझ लिया, उसके फीचर्स पे भी ध्यान दे दिया, नाम भी समझ लिया. अब ये सारे फैक्टर्स हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारी अवेयरनेस में फीड हो जाते हैं स्टेज 3 में. So the sensory and the semantic representations enter the consciousness. Now it is also suggested that more processing requires more mental effort. जितनी हायर लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग करनी है, आपका उतना ही हायर मेंटल लेवल रिक्वायर्ड होगा. तो नाउ वी हैव डिवाइडेड अटेंशन. इन आवर डे टू डे लाइफ वी अटेंड टू सेवरल थिंग्स एट द टाइम. नाउ यू मस्ट हैव सीन पीपल ड्राइविंग अ कार एंड टॉकिंग टू अ फ्रेंड or attending to phone calls on a mobile set or putting on sunglasses or listening to the music. So if we watch them closely, we will notice that they are still allocating more effort to driving than to other activities, even though some attention is given to other activities. So it indicates that on certain occasions, attention can be allocated to more than one thing at the same time. जब हम एक ही टाइम पे कई चीज़ों पे ध्यान देते हैं, कई चीज़ों को अटेंशन पे करते हैं, उसको बोलते हैं हम डिवाइडेड अटेंशन. लेकिन ये बहुत ही हाईली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटीज के साथ ही होता है. However, this becomes possible only with highly practiced activities because they become more automatic and require less attention to perform than new or slightly practiced activities. अगर मैंने ड्राइविंग कल ही सीखनी शुरू की है, आज मैं कहीं कार को लेके जा रही हूँ और मैं फ़ोन पे बात करूँगी, सन ग्लासेस लगाऊंगी, मेकअप करूँगी ड्राइव करने के साथ साथ, तो रिजल्ट शायद अच्छा ना हो क्योंकि मेरी उस चीज़ की प्रैक्टिस बहुत कम है. मैं उस चीज़ को ऑटोमेटिकली या बहुत ही स्मूथली नहीं परफॉर्म कर सकती अभी, और मैंने अगर अपने ध्यान को डिवाइड कर दिया तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा. तो ये बहुत ही हाईली प्रैक्टिस्ड एक्टिविटीज़ के साथ हम डिवाइडेड अटेंशन परफॉर्म कर सकते हैं. डिवाइडेड अटेंशन मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दें. अगला आता है सस्टेन्ड अटेंशन. नाउ सस्टेन्ड अटेंशन इज कंसर्न विद कॉन्सेंट्रेशन. इट refers to our ability to maintain attention on an object or event for longer duration. जब हम एक ही ऑब्जेक्ट पे, एक ही इवेंट पे बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बहुत टाइम तक अटेंशन देते हैं, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन. So it is also known as vigilance. So air traffic controllers and radar readers provide us with good examples of their phenomena. So air traffic controllers हो गए या radar readers हो गए, you know, they have to constantly watch and monitor signals on the screen.
तो उनका काम बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन और बहुत ही अटेंशन वाला है, जहाँ पे उन्हें लंबे समय तक अटेंशन पे करनी होती है। नाउ वी हैव फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सस्टेन्ड अटेंशन, जिस पे आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। सेंसरी मोडालिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। Now, performance is found to be superior when the stimuli are auditory than when they are visual. Now, किसी चीज को आप सुनते हो जब, वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहती है, ना कि जबकि उसी चीज को आप विजुअली देखते हो। तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है सस्टेन्ड अटेंशन का। Clarity of stimuli, intense and long-lasting stimuli facilitate sustained attention and result in better performance. जो stimuli आपके सामने ज्यादा देर तक रहेगा ना, वो आपको better performance दे पाएगा। Next, temporal uncertainty. Now, when stimuli appear at regular intervals of time, they are attended better than when they appear at irregular intervals. कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट आप रोज पढ़ोगे ना, तभी आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। टेम्पोरल सर्टेनिटी होना बहुत जरूरी है। कभी पढ़ा, कभी छोड़ दिया, उससे आप स्मूथली या परफेक्टली किसी चीज को याद नहीं कर पाते। स्पेशल अनसर्टेनिटी इज फोर्थ फैक्टर। Stimuli that appear at a fixed place are readily attended, whereas those that appear at random locations are difficult to attend. अब आपका एक क्लासरूम जो स्कूल में फिक्स्ड है, आप रोज वहीं जाके पढ़ते हो, तो आपके दिमाग में एक स्पेशल सर्टेनिटी है कि मुझे तो यही जाना है, तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो, आप उसी क्लासरूम में एंटर करते हो, उसी में पढ़ते हो रोज। लेकिन अगर रोज आपका क्लासरूम चेंज कर दिया जाए ना, आप भी इरिटेट हो जाओगे। उस क्लासरूम को ढूंढने में जो टाइम लगेगा, वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा और आप उस स्टिमुलस पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे। तो ये होती है स्पेशल अनसर्टेनिटी। नाउ वी हैव वन इम्पोर्टेंट बॉक्स हियर which is known as span of attention. So the number of objects one can attend to at a brief exposure of time is called span of attention or perceptual span. Span of attention क्या होता है? एक brief exposure of time पे, एक छोटे से टाइम पीरियड में हम कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं span of attention. This can be determined by the use of an instrument called tachyscope. So Miller has reported that the span of attention varies within the limit of 7 plus or minus 2. तो इसको बोलते हैं हम मैजिक नंबर। हम 5 से 7 नंबर्स एक साथ याद रख सकते हैं और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में 9 नंबर्स भी एक साथ याद रख सकते हैं। ये होता है हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन। नाउ वी हैव अनदर इम्पोर्टेंट बॉक्स जिसमें से आपका क्वेश्चन भी आ जाता है, विच इज नोन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो ये एक डिसऑर्डर है, एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है which is found among children of primary school age, basically 4 to 5 years के children में ये चीज देखी जाती है। Now it is characterized by impulsivity. Impulsive मतलब वो बच्चे किसी चीज के बारे में नहीं सोचते, बहुत ही impulsive होते हैं, बहुत ही impulsive होते हैं। Now excessive motor activity होती है, they continuously move, scream, run away and they have an inability to attend. वो लोग attention नहीं दे पाते किसी भी event या object पे। Now what are the factors which cause ADHD? Dietary factors, जैसे the food coloring has been documented as one cause of ADHD. जैसे जो food colors हम लोग केक्स में यूज करते हैं या खाने में यूज करते हैं, उन्हें कहा जाता है कि ये एक dietary cause हो सकता है ADHD का। Social psychological factors like the home environment, the family pathology, फैमिली में कोई डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब अकाउंट करते हैं ADHD के लिए मोर रिलायबली दैन एनी अदर फैक्टर्स। So these are considered to be some causes of ADHD. Now disagreement remains over the most effective method of treatment of ADHD. So there is a drug called Ritalin which is widely used to decrease children's sense of overactivity and distractibility, and at the same time it increases their attention and ability to concentrate. Successful modification of ADHD is claimed with the cognitive behavioral training program, in which children are rewarded for desired behavior and are combined with training in the use of verbal self-instruction. Now they are taught in these 3 steps in which they are asked to stop. उन्हें बोला जाता है कि कोई भी काम करने से पहले आप रुको, सोचो कि ये मैं सही कर रही हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और फिर ये डिसाइड करो कि उस काम को परफॉर्म करना है या नहीं करना। तो ये एक वर्बल सेल्फ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ADHD के पेशेंट्स को दी जाती है। साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर ट्रेनिंग भी यूज की जाती है, इन विच दे आर रिवॉर्डेड फॉर अ डिजायर्ड बिहेवियर। वो कुछ अच्छा बिहेव करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई प्राइज मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये था ADHD, जिससे हमारे पास एक क्वेश्चन भी आ जाता है, डिस्कस ब्रीफली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ADHD।
we'll now start with the next topic, which is perceptual process. Now, what is perception? Perception basically means your nazariya. What do you think about an event or object is basically what perception is. So, let's understand this topic in detail. So, there are several mental processes like learning, memory, motivation, emotions, and other psychological processes through which we perceive something about an object or an event. So, the process by which we recognize, interpret, or give meaning to the information provided by the sense organs is called perception. Perception basically means कि जो information हमें हमारे sense organs ने दी है, उसका कुछ मीनिंग निकालना, उस इंफॉर्मेशन को समझना और प्रोसेस करना. So that is what perception means. Now, there are certain processing approaches in perception. So there are two types of processing approaches. So now, if you see a dog, तो आप उसको ऐसे recognize करते हो. Do we identify a dog because we have first recognized its furry coat, its four legs, its eyes, ears and so on? Or do we recognize these different parts because we have first identified a dog? एक चीज़ तो ये होती है, आप उसके लेग्स देखोगे, उसकी ईयर्स देखोगे, आईज देखोगे किसी डॉग की और फिर समझोगे कि अरे ये तो डॉग है. या फिर पहले आप डॉग को देखोगे और फिर उसके फीचर्स को देखोगे कि ये फरी है, छोटा है, ह्यूज है. तो ये दो तरह की प्रोसेसिंग होती है. द आइडिया दैट रिकग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द पार्ट्स which serve as the basis for the recognition of the whole is known as bottom up processing. So आप किसी ऑब्जेक्ट के पहले सब पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करते हो एंड फिर आप उस इवेंट या ऑब्जेक्ट को एज अ होल रिकॉग्नाइज करते हो. सो दैट इज व्हाट बॉटम अप प्रोसेसिंग इज. नेक्स्ट, द नोशन दैट रिकॉग्निशन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम द होल which leads to identification of its various components is known as top down processing. तो बेसिकली इसका ये मतलब हुआ, आपने पहले डॉग को समझा एज अ होल या फिर आपने उस डॉग के फीचर्स को समझा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन फीचर्स अबाउट द परसीवर ऑल्सो. So we know that human beings are creative beings. They try to understand the external world in their own ways. Everyone tries to understand the external world in their own ways. उनके thought process, उनके opinions के according हम हमेशा किसी चीज़ का मतलब निकालते हैं. तो motivation. The needs and desire of a perceiver strongly influence his or her perception. तो बेसिकली जो मोटिवेशनल स्टेट होता है ना एक पर्सन का, वो परसेप्शन में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. कोई इंसान किसी के लिए बुरा सोचेगा ना, तो वो हमेशा उसके लिए एक परसेप्शन उसका बुरा ही रहेगा. वाई? बिकॉज वो उसके लिए अच्छा सोचना ही नहीं चाहता. तो मोटिवेशनल स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर परसेप्शन. अब ये सब प्रोसेसेस ऑफ परसेप्शन हम समझेंगे. सबसे पहले एक स्टिमुलस आता है हमारे पास. हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स उस स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. फिर हम उसे अटेंशन पे करते हैं और अटेंशन पे करने के बाद वो सारी इंफॉर्मेशन CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती है. फिर हम लर्निंग के प्रोसेसेस, मेमोरी के प्रोसेसेस और बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अप्लाई करके कुछ मीनिंग निकालते हैं और परसेप्शन का प्रोसेस एंड करते हैं. तो ये पूरी एक चेन चलती है परसेप्शन की, जो स्टिमुलस से स्टार्ट होकर परसेप्शन पे एंड होती है. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स. So this phenomenon of perceptual familiarization or perceptual generalization reflects a strong tendency to see what we expect to see when the results do not accurately reflect external reality. So I'll give you an example for this concept. So if your milkman, he delivers you milk daily at about 5:30 a.m., any knocking at the door around that time is likely to be perceived as the presence of the milkman, even it is somewhere else. तो सब stimulus से, उस जनरल स्टिमुलस से आप इतने नोन हो गए हो, इतने परसीव कर लिया है आपने कि हाँ, अगर बेल बजी है इस टाइम पे तो वही मिल्कमैन होगा. इसलिए जनरलाइजेशन एक फेमिलियराइजेशन बन जाता है कि अगर कोई और भी होगा ना, तब भी हम समझेंगे कि वो मिल्कमैन ही आया है उस टाइम पे. तो ये एक परसेप्चुअल जनरलाइजेशन या फेमिलियराइजेशन का कॉन्सेप्ट है. नाउ देयर आर सर्टेन कॉग्निटिव स्टाइल्स दैट परसीवर्स फॉलो. सबसे पहला आता है फील्ड इंडिपेंडेंट एंड फील्ड dependent. So field dependent people perceive the external world in its totality, that is in a global or holistic manner. कोई लोग होते हैं स्कूल में जो चैप्टर को ऐसे पूरा ही पढ़ लेते हैं एक साथ, तो वो एक फील्ड डिपेंडेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. लेकिन फील्ड इंडिपेंडेंट में people perceive the external world by breaking it into smaller units, that is in an analytic or differentiated manner. और फील्ड इंडिपेंडेंट लोग ना
एक चैप्टर को आपने देखा होगा स्कूल में कि छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और 2 दिन में 3 दिन में उस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू करते हैं। तो ये होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट का एग्जाम्पल। नाउ कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस, so different experiences and learning opportunities available to people in different cultural setting also influence their perception. So we already know कि कल्चर का, एक्सपीरियंस का, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज का हमारे परसेप्शन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द Gestalt psychologists. So there are certain principles of perceptual organization. Now our visual field, जो भी हम देखते हैं अपने आइज के थ्रू, it is a collection of different elements. तो उसमें पॉइंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होते हैं और कलर्स भी होते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड इनटू मीनिंगफुल होल्स इज नोन एज फॉर्म परसेप्शन। तो फॉर्म परसेप्शन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम जब इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं, इन लाइंस को जोड़ते हैं, तो कुछ मीनिंग बनता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स क्रिएट होते हैं जिनको हम एज अ होल समझते हैं। जैसे 3 लाइंस को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनता है, तो वो एक होलिस्टिक ऑब्जेक्ट है, उसे मैं एज अ होल मैंने समझा हुआ है कि वो एक ट्राइंगल है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फॉर्म परसेप्शन, जिसमें हम छोटे छोटे एलिमेंट से एक मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो Gestalt साइकोलॉजिस्ट हमें पता ही है, कॉलर, कॉफका एंड वर्थहाइमर, दे वर some prominent psychologists, Gestalt psychology. So Gestalt means a regular figure or a form. So according to Gestalt psychologists, we perceive different stimuli not as discrete elements, but as an organized whole that carries a definite form, that carries a definite meaning. तो वो ऑर्गेनाइज होल का एक नाम होगा, एक मीनिंग होगा और एक परफेक्ट फॉर्म होगा। तो ये होता है मेरा Gestalt साइकोलॉजी का मेन एम। So they believe that the form of an object lies in its whole, which is different from the sum of their parts. So basically जो 3 लाइंस एक ट्राइंगल बनाती हैं, हम उन 3 लाइंस को अलग अलग नहीं से लेते हैं जब हम एक ट्राइंगल परसीव करते हैं। हम उस 3 लाइंस को, वो जो 3 लाइंस एक ट्राइंगल बनाती हैं, हम उस ट्राइंगल को परसीव करते हैं, उसी ट्राइंगल को समझते हैं। वो ट्राइंगल का मीनिंग उन 3 लाइन से कई ज्यादा है। So the Gestalt psychologists also indicate that our cerebral processes are always oriented towards the perception of a good figure or pragmatic. So Gestalt psychologist का ये भी कहना था कि हमारे ब्रेन की जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमेशा एक कंप्लीट फिगर को या एक होलिस्टिक फिगर को ही अच्छे से परसीव कर पाती हैं। So the most primitive organization takes place in the form of figure ground segregation. फिगर और ग्राउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है। अभी हम इन दोनों चीजों के बीच का डिफरेंस भी समझेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेंगे अब Rubens वास्क। So you will either see the white part in this figure or you will see these 2 faces which are colored in black. तो ये faces तो बहुत ही क्लियर हैं, लेकिन ये जो इनके बीच का वास बन रहा है ना, ये थोड़ा अनक्लियर है। तो ये जो मेरे black faces हैं, these are my figures because they are more noticeable, और ये जो white सा वास बन रहा है, they are less noticeable, तो ये मेरा ग्राउंड या बैकग्राउंड बनाता है। Now what is the difference between figure and background? Figure has a definite form while the background is relatively formless. हमने देखा कि ये जो ब्लैक में कलर्ड है, ये बहुत ही फॉर्म में लेआउट किया गया है। Now figure is more organized as compared to its background. Figure has a clear contour. एक अच्छी आउटलाइन है फिगर की, बहुत ही क्लियर वे में हमें पता चल पा रहा है कि फिगर है वो, while the background is contourless. Figure stands out from the background while the background stays behind the figure. So ये जो background है, इसको हम हमेशा फिगर के पीछे ही समझेंगे because figure यहाँ पे ज़्यादा highlighted और clear है। Figure appears more clear, limited and relatively nearer, while the background appears relatively unclear, unlimited and away from. तो ये question हमें याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। Now there are certain principles. So the principle of proximity. So objects that are close together in space or time are perceived as belonging together as a group. तो ये proximity का example है। Now when you see this figure, आप इसको ऐसे नहीं समझोगे कि ये एक पैटर्न पूरा एक स्क्वायर बना रहा है। आप इसको ऐसे समझोगे कि डॉट्स के 2-2 कॉलम्स बने हुए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है और ये ज़्यादा proximity में है, इसलिए हम इन्हें एज अ कॉलम परसीव करते हैं। This was the principle of proximity. Next, the principle of similarity. So objects which are similar to one another and have similar characteristics are perceived as a group. So now in this, the little circles and squares are evenly spaced both horizontally and vertically. So instead we tend to see it as an alternating columns of circles and squares. इसको हम जो similar चीजें हैं ना, हम उसे ये समझेंगे कि हाँ, ये तो एक alternate pair में circles चल रहे हैं और alternate pair में
स्क्वायर्स चल रहे हैं तो हम इसको ऐसे ज़्यादा परसीव करेंगे बिकॉज इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. So this principle states that we tend to perceive objects as belonging together if they appear to form a continuous pattern. इस एग्जाम्पल में कि दोनों लाइन्स एक कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्म कर रही है, आप इसको ऐसे ज्यादा आइडेंटिफाई करोगे कि ए बी लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, टच कर रही है, ना कि आप इसको ऐसे देखोगे कि ए एक अलग लाइन है, सी एक अलग लाइन है, डी एक अलग लाइन है और बी एक अलग लाइन है जो एक पी सेंटर पे मीट कर रही है. हम इसको दो लाइनें समझेंगे जो आपस में क्रॉस कर रही हैं. तो ये था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, स्मॉलर एरियाज टेंड टू बी सीन एज फिगर्स अगेंस्ट द लार्जर बैकग्राउंड. तो इस फिगर में हमारा ध्यान ना ब्लैक क्रॉस पे ज्यादा जाएगा, ना कि व्हाइट क्रॉस में, क्योंकि इसमें हम लोग फिगर पे ज्यादा फोकस करते हैं, बैकग्राउंड में नहीं फोकस करते हैं. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री. वेरी इजी. This principle suggests that symmetrical areas tend to be seen as figures against asymmetrical background. तो आप इन ऑब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करोगे rather than the background like this or like this maybe, because they are symmetrical and the background is asymmetrical. So the principle of surroundedness. According to this principle, the areas surrounded by others tend to be perceived as figures. Now in this image looks like 5 figures against the white background rather than the word lift. हमें ये नहीं दिख रहा कि ये एक सारे फिगर्स एक वर्ड लिफ्ट बना रहे हैं, हमें ये दिख रहा है कि 5 फिगर्स बहुत ही अच्छे से स्टैंड आउट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू द बैकग्राउंड विच सराउंड देम. So these figures are much more clear. Now the principle of closure, ये थोड़ा gestalt psychology से related है. So we tend to fill the gaps in stimulation and perceive the objects as whole rather than the separate parts. अब आपने ना इस ऑब्जेक्ट में, इस फिगर में लाइंस कनेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन तब भी आपने समझ लिया कि ये ट्राइंगल है. व्हाई? सो स्मॉल एंगल्स आर सीन एज अ ट्राइंगल ड्यू टू अ टेंडेंसी टू फिल द गैप्स. हमने खुद से ही गैप्स फिल कर लिए और समझ लिया कि ये एक ट्राइंगल बना रहा है. सो वी हैव दिस टेंडेंसी टू फिल द गैप्स इन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड बाय आवर सेंसरी इनपुट. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस. So the visual field or surface in which things exist, move or can be placed is called space. तो basically जो हमारा visual field है, जो space है जिसमें हम exist करते हैं, move करते हैं object को, उसे हम बोलते हैं space. So the space in which we live is organized in 3 dimensions. हम एक 3-dimensional space में रहते हैं. So while the image of objects projected onto a retina are flat and 2-dimensional. हमारी आईज पे जो इमेज कास्ट होती है, जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है, दैट इज 2 डायमेंशन. सो द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन. तो डेप्थ परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में. जैसे ड्राइव करते हुए ना वी यूज दिस परसेप्शन टू असेस कि सामने वाला ऑटोमोबाइल या व्हीकल कितने डिस्टेंस पे है मुझसे. तो डेप्थ परसेप्शन उस सेंस में डेली लाइफ में बहुत काम आता है. Now in perceiving depth, we depend on 2 main sources of information called cues. तो एक binocular cues होते हैं because they require both the eyes to assess the depth, and another is called monocular cues because they allow us to perceive depth with just one eye. So monocular and binocular. Monocular cues are basically psychological cues. So monocular cues of depth perception are effective when the objects are viewed with one eye. So these cues, they are often used by artists to induce depth in 2-dimensional paintings. इसलिए इन्हें pictorial cues भी बोला जाता है. Now the size of the retinal image allows us to judge distance based on our past and present experience with similar objects. तो एक relative size judge करने के लिए हम monocular cues use करते हैं. Now जो image हमारे retina पे बनती है ना, और उस object के बारे में जो past knowledge होती है या किसी similar object के बारे में कुछ knowledge होती है, तो उस बेसिस पे हम उस क्यूज को जज कर सकते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग. सो दीज क्यूज आकर व्हेन सम पोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कवर्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट. तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ओवरलैप कर लेता है ना, तो ओवरलैप वाला ऑब्जेक्ट पीछे दिखता है और जिसने ओवरलैप किया होता है वो आगे दिखता है. तो ये एक मोनोक्यूलर क्यू है. लीनियर पर्सपेक्टिव. So this reflects a phenomena by which distant objects appear to be closer together than the nearer object. जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते हैं वो हमें लगता है ज्यादा नियर है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहे हैं, ना कि जो पास होते हैं. जैसे द रेलवे ट्रैक्स,
They appear to converge with increasing distance with a vanishing point at the horizon. जैसे एंड में ये जो होराइजन होता है ये हमें लगता है कि रेलवे ट्रैक्स एकदम ही मिले हुए हैं, एकदम ही टच कर रहे हैं, एक दूसरे को कनेक्टेड है. जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं हमें लगता है कि वो कन्वर्ज करते जा रहे हैं. So the more the lines converge, the farther away they appear. So the more the lines converge, the farther away they appear. Aerial perspective. So the air contains microscopic particles of dust and moisture that makes distant objects look hazy or blurry. इसलिए जब माउंटेन्स का कलर होता है ना, जब हम दूर होते हैं माउंटेन्स हमसे बहुत, so they appear blue due to the scattering of blue light in the atmosphere, whereas the same mountains are perceived to be closer when the atmosphere is clear. तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, माइक्रोस्कोपिक टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो भी एरियल पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं. लाइट एंड शेड. In the light, some parts of the object get highlighted, whereas some parts become dark. तो इससे भी हमें बहुत अच्छे cues मिल पाते हैं. Relative height. Larger objects are perceived as being closer to the viewer and smaller objects as being farther away. Texture gradient. तो इसमें density का रोल होता है. It represents a phenomena by which the visual field having more density of elements is seen farther away. जिस field की बहुत density होगी ना, वो हमें लगेगा कि बहुत दूर है. जैसे हम इस पेंटिंग में देख सकते हैं, जितना हम दूर जाते रहेंगे ना, इनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि हमें और छोटे दिखेंगे. नेक्स्ट, मोशन पैरेलल. इट इज द काइनेटिक मॉलिक्यूलर क्यू. नाउ काइनेटिक का मतलब जिस ऑब्जेक्ट में मोशन होता है वो एक काइनेस्थेटिक या काइनेटिक स्टेज में होता है. तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर क्यू है. इट occurs when the objects at different distances move at a different relative speed. So the distant objects appear to move slowly than the objects that are close. जो ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते हैं हमें लगता है वो बहुत धीरे चल रहे हैं, और जो कार्स हमारे पास होती है वो हमें लगता है बहुत तेज ड्राइव कर रहे हैं. बाइनोक्यूलर क्यूज, जो हमारे फिजियोलॉजिकल क्यूज होते हैं बेसिकली, जिसमें हम दोनों आईज का यूज करते हैं. एक रेटिनल या बाइनोक्यूलर डिस्पैरिटी होती है. तो रेटिनल डिस्पैरिटी होती क्यों है? नाउ द टू आईज हैव डिफरेंट लोकेशंस इन आवर हेड. एक आई लेफ्ट में है, एक आई राइट में है. So because of which the image which is created on both the eyes, on both the retinas is different. The difference between the two retinal images is called retinal disparity. अब convergence क्या होती है? When we see a nearby objects, our eyes converge inward. तो आंखों का साइज छोटा हो जाता है, वो squeeze कर लेते हैं हम to bring the image on the fovea of each eye. Convergence मतलब कोई भी nearby object को देखने के लिए eyes को inward curve कर लेना ताकि image clearly दिख जाए. Accommodation refers to a process by which we focus the image on the retina with the help of a ciliary muscle. तो accommodation में हम ciliary muscle का यूज करते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस पे होता है तो हम ciliary muscle को रिलैक्स कर लेते हैं ताकि वो इजीली हमारे रेटिना पे डिस्प्ले कर पाए इमेज, और जब ऑब्जेक्ट पास होता है तो उस ciliary muscle को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि रेटिना पे इमेज बन पाए. नेक्स्ट वी हैव परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. So perception of the objects is relatively stable in spite of changes in the stimulation of sensory receptors is called perceptual constancy. इस phenomena का कहना है कि जो objects का perception होता है हमारे लिए वो हमेशा stable ही रहता है, चाहे उनकी जो sensory receptors हैं उनके बारे में. Next we have the size constancy. So इस concept के according, so the tendency for the perceived size of the object to remain relatively unchanged when changes in distance from the observer and the size of the retinal image is called size constancy. आपके रेटिना पे आपकी फ्रेंड की इमेज जो आपसे 10 किलोमीटर दूर है बहुत छोटी बनी, लेकिन जैसे ही वो फ्रेंड पास आती गई 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर वो इमेज बड़ी होती गई. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि फ्रेंड का साइज दूर से बहुत छोटा था और अचानक से उसकी हाइट लंबी होती रही. नहीं, जो हमने परसीव किया वो थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो एक साइज कॉन्स्टेंसी थी उस ऑब्जेक्ट की या इवेंट की वो सेम रही. तो ये जो परसेप्शन होता है ना ये अनचेंज रहता है. रेटिना पे इमेज अलग अलग तरीके से बन सकती है बट जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो स्टेबल रहता है. सिमिलरली शेप कॉन्स्टेंसी. सो इन आवर परसेप्शंस द शेप्स ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स रिमेन अनचेंज्ड डिस्पाइट चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ रेटिनल इमेज रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंसेस इन देयर ओरिएंटेशन. जैसे कि कोई डिनर प्लेट जो राउंड शेप में है वो चाहे हमारे रेटिना पे एक इलिप्टिकल शेप में बने, स्फेरिकल शेप में बने या कोई भी राउंडिश शेप में बने, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि वो ट्राइंगल दिखेगी हमें अलग डिस्टेंस पे.
वो हमेशा राउंड फॉर्मेट में ही रहेगी। तो ये होती है शेप कॉन्स्टेंसी। ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी, द टेंडेंसी टू मेंटेन apparent brightness constant under different amount of illumination is called brightness constancy. नाउ सपोज एक पेपर है, वो सनलाइट में भी आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, और अगर आप नॉर्मल रूम की लाइट में रहोगे तो भी व्हाइट कलर में ही दिखेगा, बिकॉज द पेपर्स ब्राइटनेस, द पेपर्स कलर इज कांस्टेंट। ये होती है ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। नाउ व्हाट आर इल्यूजन्स? इल्यूजन्स आर सर्टेन मिसपरसेप्शंस, गलतफहमी जिन्हें हम बोलते हैं, resulting from the misinterpretation of information received by our sensory organs are generally known as illusion. तो कभी कभार हमारे सेंसरी ऑर्गन्स कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन असेस कर लेते हैं या कुछ गलत इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिस परसेप्शन या रॉन्ग परसेप्शंस क्रिएट होते हैं, उसको बोलते हैं हम इल्यूजन। सो दे रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल स्टिमुलर सिचुएशन एंड दे जनरेट द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन ईच इंडिविजुअल, इसलिए वी कॉल देम प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सम परसेप्चुअल इल्यूजन्स आर यूनिवर्सल एंड दे आर फाउंड इन ऑल इंडिविजुअल्स। जैसे हमें रेलवे ट्रैक दिखती है ना कि वो कन्वर्ज हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो ये इल्यूजन सबको ही होती है। इट इज कॉमन टू ऑल इंडिविजुअल्स। सो दीज इल्यूजन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल इल्यूजन्स और परमानेंट इल्यूजन एज दे डू नॉट चेंज विद एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लेकिन कुछ पर्सनल इल्यूजन्स भी होती हैं जिनके हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे, like the geometrical illusions in which we have the Mueller-Lyer illusion. Now when you see this diagram, आपको A लाइन ज़्यादा बड़ी लगेगी या B लाइन? अब एक बहुत ही कॉमन इल्यूजन हमें हो जाता है कि A लाइन ज़्यादा लंबी है क्योंकि इसके आसपास दो एरोज हैं जो दोनों डायरेक्शंस में स्ट्रेच हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये दोनों लाइन्स ही इक्वल है, जबकि हम सोचते हैं कि B लाइन A से छोटी है, तो ये एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे अब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस का इल्यूजन, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों बराबर है, लेकिन तब भी हम ये परसीव करते हैं कि वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज़्यादा लंबी है, तो ये भी एक इल्यूजन का एग्जाम्पल है। apparent movement illusion. So this illusion is experienced when some motionless pictures are projected one after another at an appropriate rate. अब जब आप मूवीज देखते हो ना, मूवी एक वीडियो नहीं होती, मूवीज बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो इतनी रैपिड स्पीड पे चलाई जाती है कि वो एक हमें वीडियो सॉर्ट ऑफ लगती है। तो ये एक इल्यूजन हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं मूवीज देखते हुए, और इस इल्यूजन को हम बोलते हैं पी फिनोमेना। नाउ व्हाट आर द सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन परसेप्शन? हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर हमारी परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? नाउ सिगेल, कैम्पबेल एंड हर्शकोविट्ज carried out the most extensive study of illusion susceptibility by comparing samples from remote African villages and western urban settings. Now, इन researchers ने ना illusion से कितना prone है लोग, ये चेक करने के लिए कुछ टेस्ट क्रिएट किया, जिनमें इन्होंने कंपैरिजन किया between the African villages and the western urban settings. So it was found that African subjects showed greater susceptibility to horizontal vertical illusion, whereas Western subjects showed greater susceptibility to Mueller-Lyer illusion. Hudson did a seminal study in Africa and found that people who had never seen pictures had great difficulty in recognizing objects depicted in them and in interpreting their cues. तो जिन्होंने आज तक पिक्चर्स देखी ही नहीं, तो उन्हें वो ऑब्जेक्ट्स या वो पिक्चर्स या वो क्यूज समझ ही नहीं आए। Now Sinha and Mishra have carried out several studies on pictorial perception, मतलब पिक्चर्स का परसेप्शन, यूजिंग अ वैरायटी ऑफ पिक्चर्स विद पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चरल सेटिंग सच एज हंटर्स एंड गैदरर्स लिविंग इन फॉरेस्ट, agriculturalists living in villages, and the people employed and living in cities. So what was the result of this study? Now, while people in general can recognize familiar objects in those pictures, now those less exposed to pictures have difficulty in the interpretations of actions or events depicted in them. जो फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं, उन लोगों ने उनकी पिक्चर्स बहुत इजीली रिकॉग्नाइज की, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स जिनसे वो फेमिलियर ही नहीं थे, उन्हें डिफिकल्टी हुई वो समझने में या फिर इंटरप्रेट करने में उन्हें प्रॉब्लम हुई. So that was all for this chapter. I hope you've understood the concepts well. So please do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much.